ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਖੈਤੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਵਿਸ਼ਮ ਹੋਏ ਜਾਏ ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਿਏ ਛਡਾਏ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਦਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन तेरा जित मिले चूकै सब सोग संतापे ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੈ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਧਰਮ ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन पानी वै संकर केते कान महेश केते बरमे ताड़त कड़ियां रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद्र चंद सूर केते केते मंगल देश केते श्रद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश
केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतियां खानी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कारत करिए बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, उस साईं दी मेहर कृपा दा सदका आप जी ने संध्या वेले दे दीवान दी हाजरी भर के सतगुरु जी दे अमृत बचनां दा कीर्तन गुरु सवारियां दे पासों सरवण कीता है। जो सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी की कृपा बख्शिश मेहर दा सदका हजूर दे अमृत बचनां दी विचार आपां कर रहे हां। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज कृपा दे खजाने गुरुदेव जिन्हां ने कल बख्शिश करके धर्म खंड विच सानू उपदेश दृढ़ कराया सी, ते अज हजूर दियां 2 पौड़ियां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। ज्ञान खंड और शरत खंड दा आओ सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे चरनां दी टेक लवो। करो कृपा साध संगत जी, धन गुरु नानक देव महाराज मेरा साईं मेहर करे। आप ही इस खिंडे कोई मन नूं दातार, एकाग्रता दी दात बख्शो। भय भावना शरधा प्रेमा भगती दी दात बख्श। अपने अमृत बचनां दी विचार आप विच वर्त के दाता आप करा लवो। करो कृपा साध संगत आशीष बख्शो और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी ने 5 खंडां दे अंदर सब तो पहला बख्शिश कृपालता की थी। हजूर ने कल धर्म खंड दे अंदर सानू उपदेश दृढ़ कराया सी कि जो कुछ मेरे मालिक ने दुनिया दा सुख सहूलत अपने वल्लों तेनू बख्शिश कीता है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਵਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾਈ ਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਦਾਵਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਜਦੋਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕੁ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਮਿਥਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਬੋਲ ਉੱਠੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨ, ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਚ ਲਿਆ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਥਨੀ ਮਾਤਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵੱਲ ਆਇਓ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਟੋਏ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਤ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
उस ज्ञान नाल तू खौमे विच चख तां मार सकना है, पर एक नाम तो बिना उस ज्ञान की कीमत कोई नहीं। सतगुरु ने बख्शिश की, कह लगे पढ़ पढ़ गड्डी लदियां, पढ़ पढ़ भरियां साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइयां, पढ़ पढ़ गड्डियां, खात खात दर ते खत्ते टोए भरने, इन्ने ग्रंथ तू पढ़ने, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइयां। साहब कह लगे पढ़ पढ़ गड्डियां खात, पढ़ियां जेते बरस बरस, पढ़ियां जेते मास, पढ़ियां जेती आरजा, पढ़ियां जेते सास, पर चेते रख नानक लेखा एक गल और होमै चखना चाक। जे एक साई नाल जुड़िया नहीं तां सच जानी ये ज्ञान तेरा ओ नहीं कि जिस ज्ञान खंड की गल गुरु देव ने की। सतगुरु ने एक होर वचन अमृत बाणी विच कीता है। हजूर कहंदे ने कि जेता पढ़िया लिख लिख पढ़िया ते तो कढ़िया बहुत तीरथ भविया। कह लगे कई थावां ते गया, जिन्ना पढ़िया ओना अंदर खौमे करके खुशक हो गया है। उस पढ़ाई ने ज्ञान खंड तक तो मैं लैके गई। हजूर दी बाणी विच परमान ने ज्ञान वालों की गल की, पर जेड़े अनुभव ते जींदे पए सन। कदी पढ़ो शायद सतगुरु दे अमृत बचन। हजूर कहंदे ने गुरमुखा के चेते रख के जदों वेद पाठ जां पुराण तू पढ़ना पे, ज्ञान विद्या एक दीवा है ते चेते रख दीवे उस दा लाभ जेड़ा अंधकार नू मिटा के चानण दे। ते जे पढ़ के भी अंदर चानण नहीं होया ते साहब ने बाणी विच बचन कीता, कह लगे दीवा बले अंधेरा जाए। जे दीवा बले तां कुदरती तौर ते हनेरा जाने। हुण ये ओ ज्ञान खंड है जिथे ज्ञान दा दीवा बलने ते अंदर दी संकीर्णता दा हनेरा जेड़ा ओ चला जाना। साहब कह लगे दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। कह लगे उस वेद दा उस कीते हुए पाठ ज्ञान दा लाभ है जिहदे पढ़न दे नाल तेरी मत ते जेड़े पापां दी मैल ओ बिलस जावे। साहब कह लगे उगवै सूर ना जाता है चंद, जे सूरज चढ़े ते चंद्रमा दी रोशनी आलोक हो जाती है। जिथे अनुभव दे ज्ञान दा सूरज चढ़ना है गुरमुखा सच जानी, उथे आ तेरे दुनिया दे ज्ञान दा फोका ज्ञान एदा चानण बिलस जाना। सतगुरु ने अमृत बाणी विच बचन कह। हुण साहिब बाबा नामदेव जी दी बाणी पढ़ो, उन्हां दे ज्ञान दा पद्धर ते एक आम केवल चुंच ज्ञान दा पद्धर ओनू देख के हैरान हो जाईदा। बाबा नामदेव जी दा अमृत बचन आउंदा है, कहंदे ने जदों मैं पढ़े हुए ज्ञानियां नू आपस विच बहस करदियां तकना केवल बाणी दे आधार ते आउणा ज्ञान खंड ते वे। कहन लगे ज्ञान खंड दी गल करदियां पढ़े भी बड़े ने, पर बाबा नामदेव कहंदे ने एक दावा करदा रब बिल्कुल नेड़े वे ते दूसरा अपनी पढ़े हुए ज्ञान नाल कहंदा कि रब नेड़े वे, एक कहंदा दूर है। ते बाबा नामदेव कहंदा दुनिया दे लोगो कियो जियां हासोहीणियां गल्लां करदे हो, कदी आ बाहर दे फोके ज्ञान नाल भी रब नू किसे ने जाने। कहन लगे तुहाडी गल तां इस तरह है जिवें कोई कहे कि पानी दे भरे हुए दरिया विचों मच्छी निकली ते अज मैं उस मच्छी नू खजूर ते चढ़िया देखिया है। अज्ञानी बंदा तां यकीन करेगा, जिन्नू मच्छी बारे जानकारी नहीं वो तां कहेगा मच्छी खजूर ते चढ़ गई। जिन्नू रब ने अंदर दा अनुभव दिता है वो कहेगा चलिया कदी खजूर दे उत्ते मच्छी भी चढ़ी है। ये तां अनखूनी बात पिया करने। साहब ने देखो अनुभव जेड़ा ज्ञान खंड सी। कहन लगे कोई बोले निर्वाण, कोई बोले दूर, कोई कहंदा रब नेड़े वे, दूजा कहंदा नहीं बिल्कुल दूर है। ते बाबा नामदेव कहंदे जल की माछली चरा खजूर, तेरियां फोकियां गल्लां इस तरह ने जिवें पानी विचों निकली हुई मच्छी कोई कह दी अज खजूर ते चढ़ गई। अनखूनी बात है ना। साहब कह लगे कोई बोले निर्वाण, कोई बोले दूर, जल की माछली चरा खजूर। कह लगे काए रे बक बाद लायो, शब्द की वरते ने हैन उन्हां दी गल विद्वानां नाल हो रही। काए रे बक बाद लायो, बक बाद दर ते फजूल बोलना
ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ बहस करना पे, क्यों फालतू मगज खपाना पे। काए रे बख बाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छिपायो। अगे उन्हें बचन किया, कहन लगे पंडित होकर वेद बखाने, पंडित दर से विद्वान, तू वाचिक ज्ञान हो के वेदां दियां उदाहरणा जानना। पर जे मैनू पूछे मूर्ख नाम दियो रामै जाने, मैं मूर्ख नाम देव नू रब दे नाम तो बिना दूजा कोई ज्ञान ही नहीं। ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ मैं भी वेदां दा, पुराणां दा, सिमरतियां दा, शास्त्रां दा, उपनिषदां दा ज्ञाता बन जाना। फिर कह लगे सोचिया इस विद्या नू पढ़ के 4 दिन वावा वावा तां मिलेगी, लोक झोके सिजदे करनगे, 4 टके भी कमा लांगा। पर दाता इन्ना कुछ पढ़ के भी जे अंदर कौमे दी मैल ना उतरी, फिर मेरे मन ने क्या छाड़ो कबीर, इस विद्या नालों तां चंगा है 2 घड़ियां साईं दे चरनां विच जुड़ के सुरत टिका के किते नाम नाल जुड़ जा, घट्टो घट जान लग्या इस दुनिया दे बंधन तां छुट जाणगे। साहब ने उत्ते बचन कीता, कहन लगे कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो। मैं सोचिया भी पढ़ लवां, हुण इहनूं इस पक्ष ना लै जाए जे शायद मैं अनपढ़ता दी गल कर रहा। गल इत्थे वे एक अनुभव ज्ञान दी ते एक केवल वाचक ज्ञान दी। कहन लगे कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो, पर कहन लगे पढ़बे स्यों भल जोग। इसे शब्द जदों जोग आया है ना, ते इहनूं इह ना समझिए कि कबीर जी कह रहे ने कि जोग चंगा, पढ़ाई नालों तां जोगी बन जाना चाहिदा है। इत्थे जोग दा अखरी अर्थ है मिलाप, ते जोगी दा अखरी अर्थ है मिलिया होया। साहब ने बाणी विच प्रमाण भी दिते ने। कहन लगे जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाइया सतगुर कह उपदेश। जोग दा अर्थ मिलाप। कबीर मैं जानियो पढ़बो भलो, पढ़बे स्यों भल जोग। कहन लगे भगत ना छाडू राम की, भावे निंदा लोग, भावे निंदो लोग। जे दुनिया कह भी दे कि कबीर तां शदाई हो गया, पढ़दा कुछ नहीं, ये केवल राम नाम जपी जांदा है। ते अगों फिर उत्तर बड़ा सोहना उन्हें दिता। हुण तकियो कबीर जी दे ज्ञान दा पद्धर ते आम ज्ञान। कहन लगे जेड़े मेरी निंदिया पा करदे ने ओ आम बंदे ने, ओ महान विद्वान पंडित ने। ते बाबे कबीर ने उन्हां लई शब्द की वरतिया। हुण ओ 4 वेदां दे ज्ञाते, सिमरतियां शास्त्र पढ़न वाले, उन्हां लई शब्द वरतिया। कहन लगे कबीर लोग कह निंदा बपड़ा, जे मन नाही ज्ञान। हुण उन्हां बचन कीता जे मन नहीं ज्ञान, कि इन्हां दे मन विच ज्ञान ही नहीं। ते जे कोई पूछे बाबा कबीर ओ इन्ने ने विद्वान, कोई दवेदी, कोई तरवेदी, कोई चतुर्वेदी, जिन्हों एक वेद सी वेदी भी कहा गया, 2 वेद कंठ कीते, कोई 3 वेदां दा ज्ञाता, ते तुसीं कह दिता ज्ञान कोई नहीं। जे मन नहीं ज्ञान, कहन लगे हकीकत ए वे ओदे ज्ञान दा पद्धर केवल ओपरा पानी। ते जिस ज्ञान ते मैं जीना पिया वां ओ हिरदे दी तह विचों निकलिया होया अनुभव दा ज्ञान। कबीर लोक कह निंदा बपड़ा, जे मन नाई ज्ञान, राम कबीरा रव रहे अवर तजे सब काम। हुण तीजा प्रमाण उन्हां दी बाणी विचों पुछया भी की कारण तुसीं इस ज्ञान नूं स्वीकार क्यों ना कीता। ते बाबे कबीर ने बड़ी सोहनी उदाहरण दिती। कहन लगे गुरमुखा ज्ञान विद्या एक दीवा है, ते जे बंदा हाथ विच पकड़े दीवा, ते दीवे दा काम है कि मनुख नूं हनेरा चीर के रस्ता प्रदान करना। जे हाथ विच पकड़िया होवे दीवा ते बंदा खूह विच छाल मारदा है, ते देखण वाले लोग कहणगे किन्ना कोई इंसान भुल्लड़ है। इस दीवे ने तां लोकां नूं रोशनी दे के राह बख्शना सी, पर यह तां खुद चानण हथ विच पकड़ के खड्ड विच डिगदा पिया है। इस बंदे नूं समझ नहीं इहदा अर्थ की है।
कहन लगे तेरे पढ़े हुए ज्ञान ने तैनू भी राह देना सी, तेरे पिछे तुरन वालियां नू राह देना सी। जे इन्ने ग्रंथ पढ़ के भी एक कदम तू रूहानियत दा नहीं चलिया, वकारां दी खड्ड विच डिगे, तू तां फड़े हुए दीवे दी भी बेअदबी पिया करना। साहब बाबे कबीर ने बचन कीता, कहन लगे मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे। ज्ञान है दुनिया दा, कि पता नहीं पढ़े लिखे नू कि नशा नहीं वरतना, कि पता नहीं वकार नहीं भोगने। साहब कहन लगे सब कुछ पता भी है, बोल भी सकता है। मन जाने सब बात, जानत की औगन करे। काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पर, ए किधर जा सुख होए, हाथ विच दीवा पकड़ के तू खूब विशाल क्या मारने। साहब ने एक होर प्रमाण दिता, सिर्फ मैं अजे एक दो प्रमाण वाचक ज्ञान दे देने ने, फिर ज्ञान खंड ते कहन लगे कई ज्ञानवान ऐसे ने जेड़े राह पाण दी बाहे बजाए दुनिया नू उजाड़ के भी रख देंदे जे। मैं अर्ज करा ज्ञान एक दीवे दी तरह, जे घर विच चंगे हथां विच दीवा होवेगा ते कईयां दे हनेरे नू दूर करके कर चानन प्रकाश करेगा, ते जे किसे माड़े बंदे दे हथ विच आ गया उस दीवे दी लाट नाल अग ला के पूरे दे पूरे घर नू साड़ के राह कर देगा। ज्ञानवान बंदा जे चाहे तां समाज दी काया भी पलट सकदा है, ते जे किते पुठे पासे नू चल पवे ते चेते रखो तबाही भी कर दिंदा है। हुण यही ज्ञान है ना। हुण एक ज्ञान है मनुख ने साइंस विच खोज की, वेखो बंदे दे अंग तब्दील कर दिते, कितना सोहना ज्ञान सी। एक दा खून दूजे दियां नाड़ां विच प्रवेश किया करदा है, मरदे होए बंदे नू साह दे दिते इहने अपने ज्ञान दे नाल। पर एक ओ भी विज्ञान है कि जे किते एक परमाणु बंब छड्ड दे ते खले खलोते बंदे जेड़े ने आउण वालियां कई पुश्तां जेड़ियां ने तबाह हो जाणगियां। ज्ञान है ना, जे दीवा हथ विच पकड़िया है ते चानण दे सकदे ही, ते चेते रखी यही ज्ञान कई बारी तबाही दा कारण बनदा है। ते सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिता, कहन लगे कुछ ऐहो जे ज्ञानी ने जेड़े पढ़े होए ने पर केवल अपनियां दी तबाही करन दे लई। ज्ञान उन्हां कोल भी है। कई विद्वान मिलदे ने ऐसे जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे प्रमाण भी देणगे, बाणी दी गल भी करनगे, पर ओ बाणी दे अर्थ कर लगिया हमेशा उल्ट पासे गल नू लै जाणगे। मेरे साहिब ने क्या कहन लगे, जेड़े शिकारी शिकार खेडदे ने उन्हां दे घरां विच हरन भी ज्ञानवान। जदों हरन नू पकड़दे ने ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰਨ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਰਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਹਰਨ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁੰਡ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹਰਨ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਜ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਿਓ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਪਟ ਕੇ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੜੇ ਹੋਏ ਬਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ, ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ ਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਬਾਜ ਵੀ ਪੜਾਇਆ। ਹਰਨਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ, ਫਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਵਾਇਨ ਅੱਗੇ ਨਾਹੀ ਥਾਉ, ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬਿਨਾ ਜਿਨੀ ਕਮਾਣਾ ਨਾਉ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਂ, ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਾੜੀ ਛਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜੜ ਹੈ
ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਪਰ ਦੇਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕਤ ਨੁਕਤੇ ਹੋਏ ਜਾਏ ਮਹਿਰਮ ਮੁਜਰਮ ਖੈਰ ਖੁਆਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਕਤ ਨੁਕਤੇ ਹੋਏ ਜਾਏ ਮਹਿਰਮ ਮੁਜਰਮ ਖੈਰ ਖੁਆਰੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਿਰਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਮ ਖੇ ਰੇ ਤੇ ਮੀਮ ਮਹਿਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੀਮ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਬਿੰਦੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਰਮ ਤੋਂ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਦੀ, ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਭੇਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਦਣ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇਖ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚਕਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਏ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਗਿਆਨ ਅੰਜਰ ਦੇਵ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਝ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇਤਰੀ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋ ਸਰਬ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਾਨੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਛੱਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਪਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤੀਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਛੱਪਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਦੁਚਿੱਤੇ ਦੋ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਪਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी, ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਆਈ, ਸਦਾ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਦਰ ਤੇ ਛੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਛਪਰੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਬੀਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी, ਸਦਾ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂधी, ਦੋ ਚੁੱਟੇ ਕੀ ਦੋ ਖੂਨ ਗਿਰਾਨੀ। ਮੋਹ ਬਲਿੰਦਾ ਟੂਟਾ ਅੰਦਰ ਦੁਚਿੱਤਾ ਦੁਬਦਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਥੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਆਈ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਖੂਨ ਗਿਰਾਨੀ। ਮੋਹ ਬਲਿੰਦਾ ਟੂਟਾ, ਬਲਿੰਡਾ ਦਰ ਤੇ ਸਤੀਰ
मोह दा शरीर शतीर भी तू तोड़ दिता है। तिश्ना शान भरी तर ऊपर दुर्मत भांडा फूटा। हुण ज्ञान खंड किवें मिलिया? कह लगे आंधी पाछा जो जल बरखा है ते तेरा जन भीना। मेरे मालक अंदर दुविधा सी, भरम सी, दुचितापन सी, माया की पकड़ सी। इन्नी कृपा कीती, अंदर आए हुए अनुभव दे ज्ञान ने सब कुछ हनेरी विच उड़ा दिता। हनेरी तो बाद जे किते पै जाए मींह ते कह लगे पहला हनेरी धूड़ उड़ा के लै गई, ते जदों मींह पिया सी ते जेड़ी थोड़ी बाती अंदर मिट्टी जमी सी पै कोई मींह ने ओनू भी दूर कर दिता। मेरे मालिक जी, तेरे ज्ञान दी हनेरी ने अंदर दी धूड़ उड़ा दिती ते तेरे नाम दी बरखा होई, ओने अंदर नू धो के रख दिता। ते जदों अंदर नू धो दिता, मेरे साईं हुण तेरे कबीर दा किरदा इस तरह ज्ञान विच प्रचंड हो गया है जिवें मींह पैण तो बाद फिर सूरज निकले ते इंज लगदा सारी धरती रब ने धो दिती। फिर रुखां दे पत्ते भी चमकदे ने। प्रकृति विच जो कुछ रब ने सिरजिया है, मींह पैण तो बाद सूरज चढ़े ते चमक पैंदा है। कहन लगे ए वे ज्ञान खंड, आंधी पाछे जो जल बरखा है ते तेरा जन भीना। कह कबीर मन भया परगासा उदय भान जब चीना। जदों अंदर ज्ञान दा सूरज चढ़िया, साहब ने बाणी विच एक होर प्रमाण दिता है। वैसे ज्ञान खंड दी अवस्था मैं आरंभ विच अर्ज कीती, इहनूं केवल ਇਹ ना समझिए अखरां दे कहण मात्र। ज्ञान खंड दी अवस्था होवे जदों जीव साईं दे लड़ लग जावे। हजूर दा एक बचन आपां पढ़ने आ, विआह होवा मेरे बाबला। देखियो ज्ञान खंड विच हुंदा की है, गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया। गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया। हर रतन पदार्थ लादा, हौमै रोग गया दुख लाथा। आप आपै गुरमत खादा, अकाल मूर्त वर पाया अबनाशी। ना कदे मरे न जाया, विआह होवा मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया। अंदर ज्ञान दा सुर चढ़ गया। मेरे साहब कहंदे ने गुरमुखा देख, जे तू पहुंचना चाहना पहला धर्म खंड विच प्रवेश करी। भाई साहब भाई वीर सिंह ने बड़े प्यारे शब्द वरते ने। कहंदे ने कदी ढेरी ढा के ना बहु कि मैनू शायद ये जो पढ़ना वा बाणी विच मंजिल मिले कि नहीं। जदों अर्थ करने आ ना, ठीक है गल्लां कहण तो बाहर नहीं, पर जे आपां यही कही जाइए साडे वस दा रोग ही नहीं। भाई साहब कहंदे ने उच्चा उठ जिमी तो प्यारे तेनू खंभ रब ने लाए। चेते रख असमान ते पंछी उड़दा कदी ज्ञान खंड विच लंघ तां सही। जिन्ने किते भाई वीर सिंह दे ज्ञान खंड दी व्याख्या पढ़नी है, भाई साहब दा महाकाव्य राणा सूरत सिंह, ओदे विच उडारियां ने ते खास करके उन्हां ने ओदे विच इन्हां खंडां दा जिक्र कीता ते कहंदे ने मैनू 1873 दे विच शायद अनुभव होया। कहन लगे उच्चा उठ जिमी तो प्यारे तेनू खंभ रब ने लाए। तू कला धरती ते तुरन वाला नहीं, साईं ने तेनू सुरती बिरती दिती है। नाम दा सिमरन दे सेवा दे खंभ लाए ने। उच्चा उठ जिमी तो प्यारे तेनू खंभ रब ने लाए। कहन लगे प्यारे ओ क्यों रिड़े गोडियां पर ने, जो उड़ असमानी जाए। उच्ची नजर ते हिम्मत उच्ची, दाया उच्चा रखी। उच्चा उड़ के नजर भी उच्ची रखी। कई बारी फर्क हुंदा है, बंदा उडारी उच्ची मारन दियां गल्लां करदा है पर नजर बड़ी नीवी जा पैंदी है। चेते रखियो उडारी तां प्रवान है जे नजर उच्ची है। साहब ने एक बाणी विच प्रमाण दिता है। कहन लगे फिरदी फिरदी दह दशा जल पर्वत बनराए। जिथे डिठा मिरत को इल बहे थी आए। इल दी उडारी बड़ी उच्ची है पर बिरती बड़ी नीवी है। उड़ती उच्चे आसमान विच ते इहो जी उडारी कि जदों उड़ने उदों खंभ मारन दी ओनू लोड़ है ते जदों तुर उच्चे चली जाती है फिर खंभ मारन दी लोड़ नहीं। खंभ पसार देंदी आसमान विच हवा अपने आप नूं उड़ाई जाती है। चेते रख साधना दा एक पाठी तुरन लग्या तेनू उद्यम करना पैना, खंभ मारने पैणगे। पर जिदन किते तू ज्ञान खंड तक पहुंचना पे
फिर केवल खंभ खलार दई, मेरे दाते दा शब्द तेनू अपने आप ही उचले मंडलों में ले जाएगा। भाई साहब कहते ने हजूर ने बाणी विच क्या कहन लगे, उच्ची बड़ी उड्डी इल पर बिरती नीवी सी, इन्नी उड्डी उड्डदी झीलां तो लंघ के जंगल तो लंघ के जिथे मरे हुए पशु का पिंजर देखा है उत्तों नजर टिका के उहदे कोल आ बैठी, की करांगे इस उच्ची अडारी नूं जे बिरती नीवी होवे तां। कहन लगे अपनी नजर भी उच्ची रखी, उच्चा उठ जिमी तो प्यारे, तेनू खंभ रब ने लाए, ओ क्यों रुड़े गोडियां पर ने, जो उड असमानी जाए, उच्ची नजर ते हिम्मत उच्ची, दाइया उच्चा रखी, दाइया दर ते मंजिल। जिस बंदे ने मंजिल ही थोड़ी मिथ ली उन्हें प्राप्त की करने, जेड़े मंजिल उच्ची मिथदे ने वो पहुंच भी जाते ने। उच्ची नजर ते हिम्मत उच्ची, दाइया उच्चा रखी, अरसी तान जिदे कोई पल्ले सो क्यों भुंजे आए, जिदे कोल रब ने सचखंड जान की ताकत रखी होवे, फिर भी धरती ते रेंगदा फिरे ते बद किस्मती। साहब कहन लगे गुरमुखा अज फिर इस खंड विच देख, जदों कोई प्रवेश करदा धर्म खंड का एहो धर्म, चेते रखे प्रकरण सारा जुड़िया रहना। एहो धर्म का अर्थ अगली पौड़ी नाल नहीं, एहो धर्म का अर्थ पिछे जाना पएगा कि जो तुसी पिछे पढ़ के आए हो कि तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। कहन लगे धर्म खंड का एहो धर्म, असल विच धर्म खंड का एहो परपज, एहो करतब, एहो मनोरथ है कि तू धर्म विच प्रवेश करें। भाई साहब भाई नंद लाल जी गोया उन्होंने एक बड़ी सोहनी गल कही धर्म खंड की। कहन लगे हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, वगर ने जोक चुनी आमदन नाबूद मरा। गजल का पहली शेर पहली गजल है। कहन लगे मेरे दाता हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, हवाए दर ते तांग। हे गुरु गोबिंद सिंह नंद लाल नू इस मनुखा दे लैन दा कोई चाह नहीं सी, ते पुछया क्यों लई? हवाए दर ते तांग, बंदगी दर ते सिमरन, आवुर्द दर ते लैके आई। हवाए बंदगी मेरे मालिक जी तेरी इस बंदगी दी तांग मैनू धरती ते लैके आईए। हवाए बंदगी आवुर्द दर, दर दर ते विच, वजूद वजूद दर ते शरीर, मरा दर ते मेरा। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा, तेरी बंदगी दी तांग करके मैं शरीर नू धारण कीता है, वगर ने जे तेरी भगती ना करा, वगर ने नहीं तां। कहन लगे मेरे मालिक जी जौक चुनी आमदन, जौक दा अर्थ शौक, चुनी दा अर्थ अजिहा, आमदन दर ते आउणा, वगर ने जोक चुनी आमदन नाबूद मरा। नहीं तो मैनू कोई चाह नहीं इस शरीर का, मेरा इको मकसद है दाता मैं इस शरीर नू लैके तेरी बंदगी कर सका। कहन लगे धर्म खंड का एहो धर्म बंदगी करनी। अगे कहन लगे ज्ञान खंड का आखो कर्म, कर्म का अर्थ इत्थे करतब है क्योंकि अगे कर्म खंड होना। कहन लगे हे गुरमुखो ज्ञान खंड का आखो दर ते वर्णन करो, श्रवण करो। ज्ञान खंड का आखो कर्म ते की? कहन लगे जदों ज्ञान की हनेरी आए उदों फिर मेरा मालिक इन्नी कृपा करदा है, अंदर दे कपाट खुलदे ने, समझ पैंदी है केते पवन पानी वैसंतर, केते कान महेश। केवल पवन एक नहीं, ये हवा भी कई तरह की। साध संगत साडे शरीर विच भी पाउण कई तरह की, नाभि विच होर पाउणे, उबासी लेने होर पाउणे, निछ मारने होर पाउणे, श्वास लेने होर पाउणे। एक आ पवन है जिदे नाल आपां श्वास लेने, एक वो भी गैस एक पवन है जिहड़ी हवा विच घुल जाए, थोड़ा जा मनुख सूंघे तो उसकी मौत हो जाती है। साहब कहते हैं मालिक जी केते पवन, कई तरह की तू पवन हवा पैदा की है। ज्ञान खंड विच समझ पई पानी, कई तरह का तू पानी पैदा किया होया। बाणी विच भी कई प्रमाण मिलते हैं। एक पानी नूं साहब कहते हैं बिखै बन फीका त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। एक वकारां दा फिक्का पानी आ, इनू छड्ड दे,
कहने लगे दूजा पानी की माधो जल की प्यास न जाए, जल में अग्न उठी दिखाए। एक नाम जल दा पानी है। साहब कहते ने पानी भी कई तरह का कौड़ा है, कुसैला है, खट्टा है, मैला है। केते पवन पानी बैसंतर, बैसंतर दा अर्थ है अग। जदों ज्ञान खंड विच प्रवेश किया ते समझ पै गई अग भी कई तरह की। सतगुरु ने तो बाणी विच वेखो अर्थ जरूर अखरी करांगा, पर है ये मेरे दाते दा अनुभव है। मत दावा मैं कर लवां कि शायद जो कुछ कह रहे हैं ये अनुभव जो साहब ने बाणी विच कहा, केवल उस उधार से कह लगे कई तरह की आगे। हुण एक आगे जठराधन, रोटी खाने पेट की आगो पचा देंदी। एक अग है दावा अगन, ਜਿਹੜੀ जंगल नूं लगी हुई अग है। एक अग है बड़वा अगन, ਜਿਹੜੀ समुंदर विच अग की लाश उठी पई है। शायद कहने इतों तक के तेरे शरीर विच भी 4 अग के दरिया पे वगदे। कई तरह की अग है। हंस खेत लोभ कोप चारे नदियां अग, हिंसा मोह लालच, ये सारिया 4 दियां अग दियां नदियां ने। कहने लगे केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश। मत समझी के कृष्ण एक ने, मेरे दाते दे रचे कोई ब्रह्मांड भी जदों ज्ञान खंड विच कोई जांदा है इस धरती दे एक कृष्ण नूं मनना है। तेरे तो बिना बेअंत धरतियां ने जिथे कई जीव ने। केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे घाट घड़ियां। बेअंत ब्रह्मे ने जेड़े मानो रब ने जिवें घाट कड़न लाए ने। रूप रंग के वेश, कई रूपां दे कई रंगां दे ते कई वेशां दी ओ घाट करदे ने। कह लगे केतियां कर्म भूमि मेहर केते। हुण वाह मेरे गुरु नानक साहब इस नूं केवल तुसी समझदे हो। अज आप बड़े पढ़े लिखे सज्जन बैठे हो जिन्हां कोल बहुत ज्यादा बोध है इस दुनिया का भी रूहानियत का भी। हुण अज आपां मंन रहे हैं ना कि मनुख दिन रात तड़पदा पिया कि इस धरती ते जीवन है। इस तो अगे होर भी धरतियां हैं जिहदे उत्ते जीवन है पर साडी पहुंच तो बाहर। बाबा जी कहंदे ने जदों कोई ज्ञान खंड विच पहुंचदा है उहनूं समझ पैंदी है केतियां कर्म भूमि। ध्यान दिया जे, कर्म दा अर्थ है काम करन वालियां, भूमि दा अर्थ है जमीन। केवल ओ धरती नहीं जिदे ते तू रहना ते कर्म कमाने। तेरे तो बिना पता नहीं किन्नियां को अनगिनत धरतियां साजियां ने जिथे जीव वख वख तरीके नाल कर्म तय करदे ने। बेअंत लोक ने केतियां कर्म भूमि मेहर केते। केवल अपने पहाड़ नूं उच्चा ना समझी। बेअंत पर्वत ऐसे ने जेड़े रब ने पैदा कीते। केते तू उपदेश, एक धरू की गल करना ते जदों इस ज्ञान खंड विच बंदा जांदा है ना ते अंदर दी खौमे बदो बदी मर जांदी जे भी मैं जेड़ा दावा करी बैठा मेरा घर मेरी ताकत। इत्थे तां बाबा कहंदा कृष्ण जी शिव जी धरू वर्गे अनगिनत रब ने पैदा कर दिते, तू किस गिनती विच आउंदा। साहब कहंदे ने कि केते तू उपदेश, बेअंत धरू वर्गे जगत पैदा कीते। ते उपदेश दा अर्थ 2 कीते ने विद्वानां ने। एक उपदेश का अर्थ है कि ध्रुव का उपदेश, पर एदा अर्थ किया गुरमुख विद्वान ने एक ध्रुव नहीं बेअंत ध्रुव ने उपदेश। नारद ने ध्रुव नूं उपदेश दिता सी, एक नारद नहीं ध्रुव नूं उपदेश देने वाले बेअंत नारद वर्गे महात्मा रब ने पैदा किए। केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते। गुरमुखा एक इंद्र देवता नहीं, एक चंद्रमा नहीं, एक सूरज नहीं। पता नहीं वाहिगुरु ने किन्ने को सूरज किन्ने को चंद्रमा पैदा किते। केते मंडल देश, मेरे रब ने किन्ने को खंड वरपंड मंडल ते जिहो जिहा देश विच तू रहना पिया इस धरती ते आपां देश अर्थ करांगे। केवल आ सारी धरती केवल एक देश की हद नहीं, इहो जिहे देशां तो इलावा भी मेरे निरंकार ने बेअंत देश होर सिरजे। केते सिद्ध बेअंत जेड़े ने रब ने सिद्ध पुगे हुए जोगी बनाए। बुद्ध एक बुद्ध अवतार नहीं सिद्धार्थ वर्गे
ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼, ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਦੇਵਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੇਂਤ, ਮੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬੇਅੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਆ ਕੱਲੇ 14 ਰਤਨ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੀ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਦੇ ਰਤਨ ਨੇ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਕੇਤੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਛੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪਜ, ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵ ਅੰਡਜ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆ ਸੱਪ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਅੰਡਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੇਰਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਛੇਤਜ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਤਪਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ 4 ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ 4 ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ। ਪਰਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ। ਮਧਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ। ਬੈਖਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਏ। 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਇੱਥੇ ਪਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਰ ਇੰਦ, ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਿਵ ਕੇਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਸੇਵਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਉਹ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗੀਤ, ਉਹਦਾ ਘਟ ਘਟ ਵੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਨੋਦ ਤੇ ਕੋਡ 2 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਤੇ ਕੋਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੌਤਕ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈਣਾ। 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਜਿਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਖੰਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ, ਉਦਮ ਦਾ ਖੰਡ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਖੰਡ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਜਣਾ ਕੇਵਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵਿਸਮਾ ਦੇ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ते सच जानियो जदों अज ज्ञान खंड ते शर्म खंड पढ़ा ना ते उदों ख्याल आया कि जपजी साहिब दी बाणी हजूर ने सानू इत्थे पहुंचाना है ते इन्हां दा इशारे मात्र वेरवा पिछे भी दे के आए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ केते पवन पानी बैसंतर केते कान मकेश, ते साहब कहते ने जदों कोई नाम विच सुरत जोड़ के सुनदा है, सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत अवल आकाश, सुनिया दीप लो पाताल, सुनिया पो ना सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। व्यर्थ कदी चुकाओ ज्ञान खंड की पौड़ी ते कह लगे नाम नूं सुनिया जेड़े अज पवन पानी का जिक्र किया है, सुन के समझ पई धरती दी पताल दी आकाश दी, ते जदों सुनिया उदों नानक भगता सदा विगास तिथा है, जेड़ा असीं बचन पढ़िया तिथा है नाद विनोद कोड आनंद, ये ओही विगास है। ते जदों शर्म खंड आया कहन लगे शर्म खंड की बाणी रूप तिथा घाट घड़ियां बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। उथे पढ़ो मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागज कलम ना लिखण हार, क्योंकि शर्म खंड विच पहुंचा होया है, ओदे बारे की तू लिखेगा। कह लगे कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने काबे करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। कह लगे ताकियां गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, चार शब्द वरते ने। कहन लगे ए ओ अवस्था ही जिथे सुरती नू मत नू मन नू ते बुद्ध नू घड़िया जांदा है। एक खिन रोक के अर्ज करदियां, गुरमुखां ने 3 शरीर मन्ने ने, पुराने जितने भी ने। हुण कई वारी सवाल हुंदा है भी एक पासे तां शरीर छड्ड देना ते दूजे पासे बाणी विच आपां पढ़ने आ कि बंदे दे गले विच संगल पा दिते। कल भी प्रमाण आपां पढ़िया सी कि वड्डा होवा दुनीदार गल संगल घट चलाया। 3 शरीर गुरमुखां मन्ने ने, सथूल सूक्ष्म ते कारण शरीर। सथूल शरीर नूं बंदा छड्ड दिंदा है, पर जेड़े कीते होए कर्म ने मन रूपी ओदे नाल फिर ये सूक्ष्म शरीर चलदा है, जिन्हों 19 तत्तां दा सियाणियां ने मन्निया। खैर मैं अर्ज करा, साहब कह लगे उस तो अगे कारण शरीर, इहदा रंग भी सियाणियां काला जिक्र कीता, जेड़े कीते होए संस्कारां दा अगे दुख भोगदा पिया। हजूर कहंदे ने इस खंड विच सुरत मत मन ते बुद्ध। मन की है साडे वकारां दे फुरनियां दी एक मैगरू फुरनियां दी एक गंढ। इउं समझ लईए कि मन इस तरह जिवें हिमालया पर्वत ते जमी कोई बर्फ है ते सजना सेक लगदा है ते ओ पिघल पिघल के तुरदी। मन फुरनियां दा एक समूह है ते मत जिहड़ी है, साहब कह लगे मत ते बुद्ध इहदे लई शब्द वरते। मन विच फुरने पैदा हुंदे ने, ये मत नूं दिंदा है। थोड़ा जिहा समझियो कि सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण भी दिते ने, कहंदे ने ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन ले जो उन मन रह, तो 3 लोक की बात है कह। ए मन शक्ति, ए शक्ति दर ते ताकत माया, जितन तेरे अंदर दे फुरने केवल माया न जुड़ गए, उदन मन माया दा रूप ही। सीओ दा अर्थ है प्रभु, जिदन रब वाले पासे मन झुक गया उदन रब दा रूप ही। ए मन पंच तत्व को जियो, ते जिदन केवल शरीर दे विषय भोगन तक रह गया, सच जानिए मन शरीर ही बन गया। ए मन ले जो उन मन रहे, जेड़ा इस मन नूं चुक के उन मन तुरी अवस्था विच टिक जांदा है, फिर ओ ज्ञान खंड विच बोलदा तो 3 लोक की बात है कह। अर्ज कर रहा तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। शर्म खंड ओ जिथे सुरत घड़ी जानी है। सुरत डॉक्टर बलबीर सिंह कहंदे ने ਇਹਦਾ 2 ਨਾਲ संबंध है। सुरत दा शरीर नाल भी संबंध है ते बाहर भी संबंध है। समझिए कि सुरत मानो एक तार है, एक सिरा जे किते रब मेहर करे घड़िया जाए ते रब दे चरना भी जुड़दा है, ते दूजा सिरा तार दा हिरदे भी जुड़िया हुंदा है। जे ना घड़ी जाए, एक
दुनिया दे वकारां विच है ते दूजा अंदर नूं है निर्गुण ते सरगुण दी लखता भी ये करांदी पई है। गुरु नानक साहब ने अपनी बाणी विच 73 वारी सुरत शब्द वरते। साहब सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ने सुरत मन मत बुद्ध घड़िया जाना। हुण मन करदा है फुरने पैदा ते बुद्धि जिहड़ी है मत जिहड़ी है इहदे तक पहुंचांदा है। इउं अर्थ कर दईए एक फाइल तैयार कीती एक ऑफिसर ने, ओने तैयार करके दिती अपने बॉस नूं, ओने ओदे तैयार कीते हुए प्रोग्राम नूं वाचना है ते जे ओनू ना फिट बह ओ कांटा भी मार देगा, जे फिट बह जाएगा कबूल करेगा। समझिए साहब कहंदे ने मन जेड़ा ये फुरने तैयार करके बुद्धि नूं देंदा है, मत नूं देंदा है। मत फिर फैसला कर दी करना है कि नहीं करना। कहने लगे जे मत होवे नीवी ते बंदा खत्म हो जाता है, जे मत उच्ची होवे मन की चलन नहीं देंदी फिर वो केवल रब की चलन देंदी है। तां ही अरदास करनी है सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मन उच्चा नहीं, क्योंकि मत ने फैसले करने ने। साहब ताई कहते सामत देहो दयाल प्रभ जित तुम्हें आराधा, जे मत फैसला चंगा करेगी मेरे मालिक जी देहो बेमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। मेरे मालिक तू दास तेरे की बेनती रिद कर परगास, एक कृपा कर मैनू अकल दे। हार परयो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध विवेका, तिथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। साहब कहते तिथा घड़िया सुरा सिद्धां की सुध। गुरमुखा ए ओ खंड ही जिथे मनुख दे अंदर दी अकल देवतियां वाली सिद्धां वाली करनी वाले महापुरुषां दी घड़ी जांदी है। सतगुरु कृपा करे सानू भी किते ए अवस्था मानण दी सूझ मेरा दाता दे दे। पर तां जे गुरु ने ते तरीके बड़ा सोहना दसे। वैसे एक वखरा विशा सी कि जोग मत द्वारा सुर चढ़ाउण दा ढंग होर है, हट जोग होर करदे ने, सन्यासी ढंग होर वरतदे ने। बाबे ने इको गल कही, कहन लगे शब्द दे पिछे सुरत नूं ला दई, जिथों शब्द आया तेरी सुरत नूं उस घर विच लै जाए, शब्द विच जुड़ जाई, तेरा अंदर टिक जाएगा। अगे कर्मखंड ते सचखंड संबंधी विचार कल नूं करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी